Can you, otherwise you can hear me, na? Right. Okay. As Prasanna ji has very rightly said, you people are aspiring, and nowadays, as you must have heard the news also, that there are girls' entries are being given propagation, right, by the army and by this government also. Now, necessary requirements which are there for accommodating the female candidates as entrants for the officers' cadre, there are certain changes, certain infrastructural requirements which the army wanted to complete. So those things are now, they have geared up at a very faster rate, and by the time you people join the academies, you will find the things would be much more comfortable and you will be very happy. Okay. Now, whenever you qualify for the examination, the biggest embargo that everybody faces, you must have interacted with your friends and they all said कि यार मैं तो पास हो गया था लेकिन मैं SSB में नहीं गया. Now why SSB should be a hawa, or why SSB should be a major embargo for any persons to go into the defense service? Now, with my experience and what Prasanna ji has very rightly said, I was very closely associated with the selection process. Now the thing is, you have attended SSB, isn't it? Yes, sir. So, this is your second attempt that you will be going for SSB? So this will be my 7th attempt. 7th attempt. Yes. Okay. Now that means 6th attempts that you have faced. Yes. You have found it that you have not been found adequate for the selection process. So what is your opinion as an individual? Ki where all have you lagged in SSB? Can we have it from you? Yes, sir. Yeah. Yes. Sir, for the very first time when I appeared for the SSB, the main problem was with my communication. Like, I could not communicate with people well, but that got cleared in my previous forthcoming attempts. But the major problem that I faced in all the 3 times in which I could face the conference was I was not clear about the psychological test. Because I could do well in my GTOs, I could very well interact with the interviewing officer. But the first and foremost confusion was that what is the psychological test? What we need to portray when we are writing a particular answer. So that was a particular thing that I had. Okay. So this is your sum of your all 6 attempts that previously that you have done? Yes, sir. Right. Okay. So here is a person with whom you people can interact, and I do not want to dwell because I had asked Prasanna ji, I had the complete schedule of how the SSB is generally conducted, but that is not required now at the moment. Okay. Fundamentally that you must know कि SSB is a time-tested procedure which has been inducted or has been associated with the selection process because this has been going on since the Britishers' time. Okay. Now, just casually, Indian Army was initially a state forces army, right? After the Britishers, they came to India, and the what is that company which is Britishers established in India? East India. East India Company. Okay. Now, East India Company wanted protection. So gradually what they did the amalgamation of the state forces into the British forces, right? And after the independence, Indian Army took this very, very seriously, and all the state forces were amalgamated into a unified force called as Indian Army today, right? Now, initially the composition was done based on the castes, not exactly caste, but region-wise. Like Sikhs is a different community, so a Sikh regiment was formed, right? Then Punjab, the people coming from Punjab were kept together. Reason is basically
to safeguard their religious values. Okay, like I was commissioned in 15 Punjab Patiala, which was the only pure Sikh unit of Punjab regiment. So during my entire service, I never went to any mandir. I only went to Gurudwara Sahib. Okay, because the Gurudwara was the only place of religion which was available in my unit. Well, leaving that apart, that is a very long subject we do not want to discuss. We come to the crux of the point today. Right. In SSB, there is nothing to get worried about it. You people must remove this embargo from your mind that SSB is tough. SSB is not tough. SSB is a scientific process whereby the right kind of material which fits into the course of duty which is desirable in the army, they are selected through this procedure. That is why it is a time-tested procedure which has been going on since time memorial, right? The Britishers brought this process of selection into India. Earlier, जो स्टेट फोर्सेस होते थे, बंदा ऊंचा पूरा है, तगड़ा है, 2-4 को पीट सकता है, वो सिलेक्ट हो गया. ऐसे होता है. उसका दिमाग है नहीं है, ये कोई नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज उसको सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है, उसने वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना. सो दैट वाज द आइडिया. बट with the invent and advent of science and technology in defense now, अभी आपने यूक्रेन वगैरह का वॉर देखा होगा. मॉस्को में बैठ करके टारगेट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन यूक्रेन. ओके, हाउ इज दिस हैपनिंग? दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, राइट? नाउ इफ यू डू नॉट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, you will be misfit for running and commanding your troops. Because आप जैसे आर्टिलरी गन, एक आर्टिलरी गन जब फायर करती है, now there are different kind of guns, RT guns, like medium guns, then field guns, then your howitzers, that is smaller version. Now the medium gun जो है, उसका गोला जो जाता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ फायर, इट गोज़ टू 55 किलोमीटर्स. हाउ मेनी? 55 किलोमीटर्स. एंड इट इज़ वेरी हेवी, राइट? मीडियम जो मीडियम गन्स होती है, उनका जो राउंड्स होते हैं, दैट ईच राउंड वेज नॉट लेस देन 40 to 50 पाउंड्स. नाउ 50 पाउंड्स का वेट जो है वो गन फायर करेगी और वो 55 किलोमीटर जाएगा. सो यू कैन वेल इमेजिन. अभी वो जब फ्लाइट पे जाता है तो उसके ऊपर इफ़ेक्ट करने वाले क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? वेदर, उसके बाद में विंड कैसी वेलोसिटी है, राइट? उसके बाद में वो जो टारगेट है, वो टारगेट के ऊपर एग्जैक्टली वो बॉम्ब गिरना चाहिए. नाउ एवरीथिंग इज़ कंप्यूटराइज्ड. ठीक. Now likewise, if the round has to go to a maximum limit, so 45 degrees का जो angle है, that will give the maximum range of the gun, right? 45 degrees से कम हो जाएगा तो that round will go like this and then it will fall, but the range will be reduced. Similarly, in the lower ranges, further lower किया जाए उसको, तो it will hit in the direct roll also. जैसे कारगिल की लड़ाई में पूरे के पूरे जैसे फायर हुए थे, तो पाकिस्तान के बंकर के ऊपर डायरेक्ट रोल में फायर हुई थी गन्स. ओके, वेल दिस इज़ वन आस्पेक्ट. बट टेक्निकलिटी कभी आप लो उसकी, तो आपको 10 डिग्रीज़ का 10 फिगर का उसका ग्रिड रेफरेंस पता होना चाहिए. नाउ व्हाट इज़ अ ग्रिड रेफरेंस? आप लोगों ने मैप रीडिंग थोड़ा बहुत कभी सीखा होगा, तो मैप्स के ऊपर रेक्टेंगल्स बने हुए होते हैं ना. लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की जो लाइंस होती है, उसके से एक स्क्वायर बनता है. नाउ हर एक मैप का जो वो स्केल है वो डिफरेंट होता है. आपको सिंपल वे में समझाने के लिए आइडियल इज, सपोजिंग इफ द स्क्वायर इज़ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ईच, राइट? नाउ दैट 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जो स्क्वायर है,
वो ज़मीन के ऊपर कितना रिप्रेजेंट करेगा ये वो मैप की स्केल आपको बताएगी। अंडरस्टूड? नाउ यदि उस 1 स्क्वायर का जो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है, इट इज़ जनरली ग्राउंड के ऊपर तकरीबन वो हो जाएगा तकरीबन 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कहाँ 1 सेंटीमीटर और कहाँ 1 किलोमीटर, राइट? और अभी उसके अंदर 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के अंदर यदि आपका राउंड ठीक तरीके से नहीं गिरा तो दुश्मन बर्बाद नहीं हो सकता। So that 1 square is further divided into 10 squares, 10 vertical lines, 10 horizontal lines, and then exact point is taken out where the target is. तो उसका 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस जो है उसका बन जाता है, ठीक? तो 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस में हो जाता है तकरीबन 100 मीटर्स बाय 100 मीटर्स का एरिया जो है वो कवर हो जाता है। सो ये जो टेक्निकलिटी है ये समझने के लिए नाउअडेज एवरी ऑफिसर हैज़ टू बी मिनिमम अ ग्रेजुएट, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड। तो बेसिक साइंस उसको सीखना चाहिए, इसलिए ये चीज़ें अभी मैंडेटरी हो गई है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ कमिंग डाउन टू द एसएसबी में यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी? हाँ, ओके, लेट्स हैव हर एक्सपर्टाइज। I give you 2 examples. One fellow, he is little cautious. He is always little cautious. Another person is a daredevil chap, right? The person who is little cautious, he thinks, he takes logical solutions and then gives his answer. The daredevil just bashes on. Okay? Now, when you consider as an officer's lot, do you want anyone to just go and bash on? Or do you want a person to think, go to the logics and then decide for himself? Right? But if there is a negativity in your thinking, then you are definitely bound to meet your Waterloo. Waterloo in the sense, तुम सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो तुम्हारे को जितना भी कोई भी सिचुएशंस जब दी जाती है, ऑलवेज ट्राई टू थिंक ऑन द पॉजिटिव टर्म ऑफ दैट सिचुएशन, ये हमेशा ध्यान रखो। बट उसके अंदर जो आप थिंकिंग करते हो, पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, तो उसके अंदर तुम्हारा लॉजिक जो है इट मैटर्स, राइट? बिकॉज यदि आप लॉजिकली यदि आप आगे नहीं जाएंगे तो उस केस में more often than not you will take a foolhardy decisions. वो नहीं होना चाहिए। Because if you are want to be officer, because देखो ऐसा है, ऑफिसर होने के लिए OLQs की एक क्वालिटीज़ होती है जो आपको प्रसन्ना जी ने बताई होगी। Officers like qualities. Now what all those qualities are, that I do not want to dwell on this because that has already been taught to you, or perhaps you may be aware, and if you are not then he will dwell upon this. ठीक? तो officers like qualities में you are responsible for your command. यदि मैं बटालियन कमांडर हूँ तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे 1500 जो जवान हैं मेरे साथ में लड़ने वाले, उनके हर एक की ज़िंदगी, उनका वेलफेयर, उनका लुकिंग आफ्टर इज़ माय प्रॉब्लम। जनरल चेतवुड का एक बहुत अच्छा सेंटेंस है दैट यू कैन शो देम वन ऑफ दिस डेज, कि द वेलफेयर ऑफ योर नेशन, ऑनर वेलफेयर ऑफ योर नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। Honor, welfare and well-being of your men whom you command comes next. And your own personal comforts, well-being comes last always and every time. So this is how the officers are supposed to groom themselves up. ठीक है? Well, तो ऑफिसर्स के लिए ऊपर जब तुम्हारे ऊपर इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो यू हैव टू टेक लॉजिकल डिसीशंस एवरी टाइम।
बहुत बार ऐसे है कि यू हैव गॉट catch-22 सिचुएशन. Catch-22 सिचुएशन मतलब ये करो तो भी हालत ख़राब होनी है, वो करो तो भी हालत ख़राब होनी है, ऐसी सिचुएशन आएगी. तो ऐसे सिचुएशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है. देन विद इन दैट सिचुएशन, गिवन द कंस्ट्रेंट्स, यू हैव टू थिंक एब्सोल्युटली लॉजिकली कि चलो इसके अंदर ये करूँगा मैं तो इसके अंदर लॉसेस कर, मौत तो आनी है दोनों साइड. जब मरना है तो मुझे दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा के या दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर कैजुअलिटीज़ एट्रोस ये करके मैं कब ये कर सकता हूँ अपने आप को सेक्रीफाइस. तो यू सिलेक्ट दैट पाथ, दैट्स ओके, बिकॉज इन एनी केस, इन ईदर केसेस यू आर गोइंग टू बी कन्फ्रंटेड विद द डेथ. ठीक है. तो ऐसी सिचुएशंस में ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू थिंक लॉजिकली. दैट्स व्हाई in SSB you have to, whatever situation is given, think logically, but don't waste time. It is a race against time. You have faced it, isn't it? So they will keep showing you, flashing the words. एक एक वर्ड सिर्फ दिखाएंगे और आपको लिखना है. तो every word that is flashed to you, you write a sentence which should give positive inference or your positive attitude. Right? That is important. Don't show your foolhardiness and, like for example, I will just give you one small example. Supposing a word comes fire. Okay? Fire. What will you write? Fire is used for cooking food. Good. How about you? BrahMos fires 7 rounds at a time. BrahMos missile fires 7 rounds at a time. That fire and this fire has got different connotation, beta. Fire is आग. Okay. That fire is you are talking about. Okay. Let's have it from you. Make a sentence from fire. Fire provides us warmness. Loudly. Fire provides us warmness. Warmness. Okay. कुछ तो बोलो. Sir, my friend is fired up. Your friend is fired up. Okay, fine. Right. Every aspirant has a fire within. Every Aspirant has a fire within. fire Within. within. Okay, good, good. Yes, Fire is a source of energy. good. Right. Abuse carry will of fire. Yeah. Now you have heard all the sentences, right? Nobody is wrong. Right? But when you evaluate yourself, positive inferences कहाँ से आते? Somebody has said कि fire is the, you said something. What did you say? Every aspirant has a fire within. Every aspirant has got fire inside, right? Now I will say fire is the gist of life. Okay? Now, what does it mean? That what she said, I have said the same thing, but I have said in a different way, which has started making an impact. That if you have fire, you will bloody hit the bull, isn't it? तुम्हारे में फायर है तो तुम साला हर चीज़ को, कोई भी चीज़ को है वो हासिल कर सकते हो. A person who has got fire will always achieve his aim. ठीक है. ये you have tried to convey it in the positive sense, isn't it? Fire is dangerous. Again, is not wrong sentence. But does it give any inference? It doesn't give, right? Water. Water is life. Somebody says, okay. Somebody says, water is used for creation of power, energy. Positive is life. Isn't it? So different words which are given, try and bring it out a positive inference out of that. अभी वो जो वर्ड टेस्ट होती है वो उसके मेरे पहले when I did the GTO's course that time they used to give I think 60 words. Okay, same. 60 words per sentence has got 1 minute, right? So they will flash it and then it will switch up. The next word will come after 1 minute. So within that you have to write a line. Now, whenever you write,
राइट इन सच ए वे दैट द पर्सन शुड बी एबल टू रीड इट. तुम ऐसे ही घसड़ घुसड़ के कुछ लिख दोगे, वो तुम्हारा ये काट देगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है इतना. फॉर वन पोस्ट ऑफ ऑफिसर जो रेशो जो है आज इंडिया में इज 1:, ऑलमोस्ट अबाउट कितना है? Around 200 people come in one batch in after entry. ओके, सो देर आर हाउ मेनी SSB centers? FSB, there are 5 FSBs. Okay, so in a batch you can say roughly 1000 people are appearing. ठीक, तो एक पोस्ट के लिए रफ एंड बाय एंड लार्ज यू कैन से 1:1000 का मिनिमम रेशो है, मिनिमम. दैट इज़ व्हाट आई एम गिविंग ए वेरी कॉन्जर्वेटिव फिगर. अब वो 1:1000 का यदि रेशो है तो तुम्हारे को उसके अंदर बिट करना है, सामने वाले को इम्प्रेस करना है कि सिलेक्ट मी, आई एम द मैन whom you should pick up. Okay, because the hot cake what you are looking for, it is me. So ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक तुम खुद अपने आप में ये चीज़ें जनरेट नहीं करो. तुम्हारे में वो आग होनी चाहिए कि साला कम कुछ वो whatsoever it may be, I will hit the bloody jackpot. And difficult नहीं है, let me tell you very frankly. मेरे बैच के अंदर इंडिया में जो बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से आए थे, जिन्होंने कभी कॉन्वेंट का मुंह नहीं देखा था, ऐसे भी बच्चे सिलेक्ट हुए. आई माई सेल्फ हैव नॉट सीन एनी कॉन्वेंट. मैं प्राइमरी स्कूल में था तो म्यूनिसिपल स्कूल में थे. आप लोगों ने तो बच्चों ने वो देखा नहीं है ज़माना. हम उस ज़माने में थे, पढ़े थे, ज़मीन के ऊपर ऐसी पट्टियाँ बिछी हुई होती थी, उसके अंदर बैठते थे, सर के ऊपर टोपी मैंडेटरी थी, वाइट शर्ट, खाकी शॉर्ट, और वो ज़रूरी था, और गांधी टोपी डालना बहुत कंपल्सरी था. एंड आई स्टडीड इन अ प्राइमरी स्कूल, इन म्यूनिसिपल स्कूल. बट आई हैड दैट फियर एंड दैट अर्ज इन मी दैट आई मस्ट इम्प्रूव माई सेल्फ. द स्कूल हैज़ गिवन मी द फंडामेंटल एजुकेशन. हमारे टाइम पे बेटा 6th स्टैंडर्ड में जाने के बाद में ABCD इंट्रोड्यूस होती थी. आज तो बच्चा उसकी मदर उसको जब क्रेडल में से बाहर निकालती है तो उसको A सिखाती है. यू जस्ट इमेजिन, आई लर्न इट व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड. तब तक मेरे को कभी ABCD नहीं मालूम थी. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. दैट in my house everybody was educated, so they wanted me to learn. Okay, that is a different story. But that privilege was not available with everybody in the society, ना. ओके, बट ऐसा नहीं है कि उस वक्त आर्मी में सिलेक्ट नहीं होते थे लोग. आई वॉन्टेड टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ ही हैज़ वेरी राइटली सेड दैट कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अभी आपने, यू आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स, यू हैव सीन एन नंबर ऑफ तुम्हारे लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स देखे हुए. देर आर फ्यू प्रोफेसर्स ऑफ यूअर्स हु आर हाईली क्वालिफाइड, बट वो तुम्हारे को अच्छे नहीं लगते, तुम उनकी नकल उतारते रहते हो. ये तुमने किया है, मैंने भी किया है. आई ऑल्सो डन दैट, राइट. कुछ लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, बट दे आर सो गुड कि उनका क्लास कभी मिस नहीं करना होता. अच्छा, उनके क्लास में कभी आवाज़ नहीं होती और तुम कभी उनकी नकल नहीं उतारते. वाई? बिकॉज ही कैन कम्युनिकेट विद यू एट योर लेवल. समझ में आया? मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, लेकिन मेरे को यदि कम्युनिकेट करना नहीं आता तो मैं जो मुझे नॉलेज है वो मैं आपको पास नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे को कम्युनिकेशन आता नहीं है. लेकिन मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, बट मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, और मैं प्लेन MSc हूँ, मैंने डॉक्टरेट नहीं किया है. मैं MSc करके जो आपको पढ़ाऊँगा तो आई विल बी कमिंग टू योर लेवल. मुझे यदि पता है कि हिज IQ लेवल इज़ वेरी हाई, ओके, तो मैं उसको उस लेवल के ऊपर जा करके पढ़ा सकता हूँ, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, काइंडली डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. हाँ, सपोजिंग हिज लेवल इज लेस, सो आई शुड गो डाउन टू हिज लेवल एंड मेक हिम अंडरस्टैंड. और मेरे क्लास में से जाते वक्त किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी माई प्रिंसिपल एज ए टीचर. ओके, इफ दैट बी सो, यू विल ऑलवेज डेवलप लाइकिंग फॉर इट. ठीक है.
So communication in your SSB is very very important. अब कम्युनिकेशन में क्या है, दो तीन बातें हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि मुझे कम्युनिकेशन आता है या मैं बहुत बड़बोला हूँ, इसलिए हर कोई बात बोलते साथ एकदम मैं बड़बड़ करना शुरू कर दूँ, दैट इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. Whenever a question is asked by the DSS or the instructors, you know the answer, raise your hand. Okay. He asked you, speak only which is desirable. ज़्यादा आप बड़बड़ करोगे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, और जितना ज़्यादा बोलोगे उतने मिस्टेक्स करोगे. You should be able to, any situation given to you, any question given to you, anything given to you. मैं तुम्हारे को एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ. I was associated with the Government of India का Youth Exchange Program. Now what is Youth Exchange Program? Youth Exchange Program is nothing but all the NCC cadets coming from all over India. ठीक है? In India there are 24 directorates, now 27 directorates, right? तो हर एक डायरेक्टरेट के अप्रॉक्सीमेटली 500, about 500 to 550, roughly you can say 600. So 23 into 6 कितना हुआ? मैथमेटिक्स स्टूडेंट 138. Okay. Now 138 multiplied by 100. Okay. So इतने स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ एनसीसी के कैंप में दिल्ली में. उसमें से राजपथ के ऊपर जो मार्च करते हैं उसमें 144 प्लस 4 148 गर्ल्स एंड 148 बॉयज़. कितने 13,000 14,000 बच्चों में से सिर्फ इतने बच्चे सिलेक्ट होते हैं वहाँ राजपथ के ऊपर मार्च करने के लिए. क्यों? बिकॉज राजपथ अभी क्या है, उसका नाम क्या है? कर्तव्य पथ. तो कर्तव्य पथ के ऊपर जो मार्च करते हैं दे आर सपोज टू बी द क्रीम ऑफ इंडिया, इसलिए उनका सिलेक्शन जो है वो भी बहुत टफ होता है, और वो ही उन लोगों को वहाँ सिलेक्ट किया जाता है जिनके अंदर वो दम होता है. क्योंकि विजय पथ से लेकर के जो एनसीसी के कैडेट्स हैं दे वॉक ओनली अप टू इंडिया गेट. नाउ इंडिया गेट टू विजय, दैट मीन्स विजय चौक. विजय चौक मतलब जहाँ ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो जो चौक है दैट इज़ कॉल्ड एज विजय चौक. ठीक है. तो विजय चौक के ऊपर जहाँ से कर्तव्य पथ स्टार्ट होता है उसके साथ में एक स्टार्ट लाइन लगी होती है. तो वो स्टार्ट लाइन से लेकर के इंडिया गेट तक जाना, मतलब यू हैव टू टेक ए सर्कल, यू हैव टू सैल्यूट द अमर जवान ज्योति एंड देन यू ब्रेक ऑफ आफ्टर दिस. तो वो डिस्टेंस है 3.86 किलोमीटर. कितना है? 3.86, राइट. अब 3.86 किलोमीटर में every person has to walk absolutely upright and every time he has to dig his heel, and we march at a speed of 120 steps in a minute. ठीक है. 120 की चाल बोलते हैं उसको. ठीक है. तो इस स्पीड से जब आपने जाना है तो जिसके अंदर वो दम होता है उन्हीं को लिया जाता है. और पहले तो ये था कि जो गर्ल्स कंटिजेंट होते थे एनसीसी में उनके पास राइफल्स नहीं होते थे. अभी उनके पास भी पूरी राइफल्स होती है, क्योंकि आर्मी के अंदर जब आपका सिलेक्शन होगा तो स्टैंडर्ड्स कहीं भी लोग नहीं किए जाएंगे. ठीक है. बिकॉज यू हैव टू फाइट विद योर कलीग्स, कंधे से कंधा लगा के फाइट करना है. और मैं अभी रिसेंटली लॉट ऑफ गर्ल ऑफिसर्स को मिल कर के आया हूँ मैं. मेरे माई सन इन लॉ इज़ कमांडिंग वन ऑफ द यूनिट. उनके यूनिट में 6-7 लड़कियाँ थी, आउटस्टैंडिंग गर्ल्स. ओके. एंड यू कैन बिकम वन ऑफ देम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. ओनली थिंग इज़ यू हैव टू हैव दैट फायर इन यू कि मुझे करना है, काम ख़त्म.
तो कम्युनिकेशन जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसी सिलसिले में मैं आपसे जो बात बता रहा था कि आफ्टर दिस परेड इज़ ओवर, देयर आफ्टर द चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड फॉर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में इंडिया के जो एनसीसी कैडेट्स है, उसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसमें से उनका सिलेक्शन होता है। अब उस सिलेक्शन में फर्स्टली उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, उनके मैनरिज्म एटिकेट्स अच्छे होने चाहिए, उनका नॉलेज अबाउट इंडिया एज अ कंट्री वो होना चाहिए, इंडिया की अलग अलग जो पॉलिसीज़ है उसके बारे में उनको मालूम होना चाहिए, इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया की कैसी है उसके बारे में पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के जो डायरेक्टिव्स है विच हैव बीन गिवन टू द स्टेट्स एंड विच हैव बीन गिवन फॉर द जनरल पब्लिक, उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे बेसिस के ऊपर उनका सिलेक्शन होता है। एंड दोज बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर सिलेक्टेड, दे आर सेंट अब्रॉड एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हमारी जो कंट्री है, हमारे कंट्री से 14 कंट्रीज़ के अंदर आज, जब तक मैं वहाँ था तब तक तो 14 कंट्रीज़ का हमारे साथ में एसोसिएशन था। उसके अंदर यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके बाद में ज़ैम्बिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये इतने कंटिजेंट्स तो डेफिनेटली थे, और 2 4 5 और भी है, मैं उनके नाम भूल गया। एनीवे, तो उसके लिए जो बच्चे सिलेक्ट करने हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, सो हर एक डायरेक्टरेट के, मतलब हर एक कंट्री के अंदर मिनिमम 15 to 17 के पास में जाते हैं। तो उसमें 8 बॉयज़ होते हैं, 7 गर्ल्स होती है, 15 इसमें दिस इज़ द कंपोजिशन। तब उनका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अभी रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं जब उनका सिलेक्शन करता था तो मैं बताता था ठीक है, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आई विल गिव यू 1 मिनट एज पर स्टॉप वॉच एग्जैक्टली। आई वॉन्ट यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। वो तो हर कोई जानता है ना अपने आप को, कि नहीं जानता? यू नो योर सेल्फ ना? यस, यस और नो? या, गुड। सो एवरीबडी नोज हिमसेल्फ। नाउ व्हेन आई से आई विल गिव यू 1 मिनट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, I want to see what you would like to speak about you. You will be surprised. There were cadets who could not speak for more than 15 seconds. It's a shame. यदि तुम अपने बारे में 15 सेकंड के अंदर बोल करके ख़त्म कर देते हो, तो इसका मतलब है कि तुम अपने आप को जानते ही नहीं हो। And what I expect in that 1 minute from you is a SWOT analysis. What is a SWOT analysis? Strength, weakness, and opportunities and traits. Okay. So that is what one should do. If you say कि मेरे पेरेंट्स, अरे सबके पेरेंट्स है भाई, है ना? You can briefly talk about your parents. कि my parents have been instrumental in me bringing me up here, and now I am telling you about myself that I am so and so. I have got this as my positives, and these are my weak points, and what I am doing exactly to improve on that. That is what I am desiring. I am expecting you to speak, isn't it? क्योंकि मैं आपको इंट्रोडक्शन करने के लिए बोल रहा, तो मैं आपको ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि तुम मेरे गले में हाथ डालो और चलो यार घूमने के लिए। आई वॉन्ट यू टू नो कि तुम्हारे वीकनेसेस क्या है, तुम्हारे स्ट्रेंथ क्या है, हाउ गुड यू आर इन योर वेरियस स्किल्स। तो ये बोलने के लिए तुम्हारे को कम से कम 1 मिनट के अंदर यू शुड बी एबल टू समराइज ऑल दिस थिंग्स। तो अपने जो पॉइंट्स है उनको क्विकली समराइज़ करके, और उसके लिए यू मेंटली तुम्हारे को तैयार रहना पड़ता है कि मेंटली मैंने कैसे कैसे एनालाइज करना है हर एक सिचुएशन को। ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाट माय पॉइंट वाज दैट आई एम ब्रिंगिंग अप नाउ। सेकेंड एस्पेक्ट इज योर साइकोलॉजी इन SSB. साइकोलॉजी इज़ एस्पेक्ट विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस सिंस टाइम मेमोरियल। क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे आप लोगों में से भी आपने देखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स थे, आई हैव कम अक्रॉस लॉट मेनी स्टूडेंट्स बिकॉज आई वॉज इंस्ट्रक्टर इन वेरियस स्कूल्स।
एग्जामिनेशन का नाम सुनते साथ उनको पसीने छूटने लगते, होता है। नाउ दिस इज अ फियर साइकोसिस विच इज नर्सिंग यू, बट वाई डू यू वॉन्ट टू हैव दैट फियर इन यू? तुम अपने आप को इतना तैयार करो कि तुम्हारे से डर दूर भाग जाए। एक वो शेर है बहुत अच्छा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ओके, सो वन एंड एवरीबडी कैन डू इट। कोई बात ऐसी नहीं है कि जो तुम नहीं कर सकते। जिस किसी ने ये सोच लिया मन में कि यार मेरे से ये होगा नहीं, तो तुम्हारे से नहीं होगा। और यदि तुम ये ठान के चलोगे कि ये नथिंग डूइंग, यार इज अ ब्लडी चाइल्ड्स प्ले, आई विल डू इट, यू विल डू इट। कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट उसके अंदर फुल हार्डनेस नहीं होना चाहिए। एनालिटिकली हर एक चीज़ को ड्रॉ करना है, ये अपना सेकेंडरी नेचर बनाओ। एक मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज बता दूँ, यू पीपल आर स्टिल यंग, whenever you go to the bed, right, immediately तो नींद नहीं आती ना, आंखें बंद करके पड़े रहते हो कि थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, तो वो टाइम यूटिलाइज करो। Now how do you want to utilize that time? Any bright idea? नींद आने से पहले, हाँ, बिस्तर में लेटे हो तो नींद तो इमीडिएटली नहीं आती है। अब वो जब तब तक वो जो टाइम है तुम्हारे पास, तब तक क्या करोगे? रिवीजन करोगे। ओके, दैट इज़ वन गुड एस्पेक्ट। एनी अदर, एनी ब्राइट आइडिया? Think about what you have to do tomorrow. Make a mental to-do list. So you plan for your future work. Okay, fine. Read a book. Read a book. Good. So you can recall all the things you have done in the whole day, like whatever positive things I have done and whatever negative things I have done. So I can correct it tomorrow. Very nice. Very nice. What else? Any other idea? Say again. I can't hear you. Okay, you do not know. You think? Can you think? Ki what you will do next day, or what you want to do? Look, I will give you a small exercise. Right? Think about it. What is your name, beta? Kamakshi. Kamakshi. What she has said is very right. That is a very positive thing. आप जब बिस्तर के ऊपर लेटते हो तो ये 5 मिनट में सिर्फ इतनी एक्सरसाइज करो कि आज मैंने दिन भर अपने खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए मैंने क्या किया और मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। ठीक, थिंक और इट। इनिशियली यू मे फाइंड कि तुम्हारा वेस्टेज वाला जो तराजू है, ठीक है, वो तुम्हारा यहाँ है और तुम्हारा गेन वाला तराजू यहाँ है, राइट? What you have done and what you reverse it by your actions and make that as a point for you to improve upon your thing. मैं तुम्हारे को मतलब एग्जैजरेशन के लिए नहीं बता रहा हूँ। दिस एक्सरसाइज आई डू इवन टुडे। मैंने यदि किसी का दिल दुखाया है, मैंने किसी के साथ में बुरा बात किया, यार आई हैव नॉट डन दिस रॉन्ग, next day whenever the opportunity comes I must apologize to that guy. ठीक, I have wasted my so much of time. So many people I ask them कि तुम्हारा क्या है, what is your hobby? Watching TV. अरे watching TV is no hobby यार. Every joker watches TV. What you watch on TV is important. कोई बोलता है कि मैं हिस्ट्री चैनल्स देखता हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल्स, गुड, एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग. समबडी सेज आई वॉन्ट टू लिसन टू ओनली BBC एंड सम इंग्लिश न्यूज़. दैट इज बाय यू आर इम्प्रूविंग योर नॉलेज, यू आर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, गुड. मैं तुम्हारे को एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ. जब भिलाई स्टील प्लांट एस्टेब्लिश हुआ, सो लॉट ऑफ रशियंस हैड कम. पूरा रशियन इंजीनियर्स एंड वर्क फोर्स हैड कम एंड दे मेड दिस कंप्लीट प्लांट. ठीक है. अब रशियंस यूज टू स्टे इन देयर हाउसेस, सो दे नीड सम फूड
So they used to go to the local market and buy vegetables, whatever vegetables Indians used to have. ठीक. So the Russians, ये जो शलगम है, कैरेट्स है, टोमेटोज़ है, पालक है, हैं, इनको रशियन वर्ड्स में बोलते थे धीरे धीरे. पहले तो वही बोलते थे क्योंकि उन्होंने वही देखा है. ग्रेजुअली उनको पता चला कि इसको पालक बोलते हैं. सो दे पिक्ड अप पालक, और जो वहाँ बेचने वाले थे दे पिक्ड अप रशियन वर्ड्स. आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज द फैक्ट. तो कम्युनिकेशन ऐसे होता है, टू वे कम्युनिकेशन. एक मज़ेदार किस्सा और मैं बताता हूँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड. व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, उनको इंडिया की लैंग्वेज आती नहीं थी. सो दे फाउंड इट डिफिकल्ट हाउ टू कम्युनिकेट. बट देन दे वेर वेरी इनोवेटिव पीपल, बड़ी आइडियाज़ थी उनके पास. तो अभी सर्वेंट थे इंडियंस को बहुत, दे टू ट्रीट एज सब स्टैंडर्ड पीपल नो. और उनके घर में हिंदुस्तानी बहुत सारे लोग काम भी करते थे. अब वो नौकर को बोलना है दरवाज़ा बंद करो, ठीक है, अब वो कैसे बोलेगा अंग्रेजी साहब? तो बोलता था देयर इज़ अ ब्राउन क्रो, देयर इज़ ए ब्राउन क्रो, ही यूज्ड टू से. तो वो ही इज स्पीकिंग इन हिज ओन लैंग्वेज, बट वर्ड्स एंड सेंटेंस अकीन टू दैट विच विल साउंड दरवाज़ा बंद करो. देयर इज़ अ ब्राउन क्रो, तो वो समझ जाता है अंग्रेज साहब बोल रहा है दरवाज़ा बंद करो. ठीक है, दिस इज हाउ कम्युनिकेशन इज. सर्दी बहुत है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो कैसा बोलेगा सर्वेंट को? बहुत ज़्यादा सर्दी है, उसको सर्दी भी रहती तो मालूम है. देयर इज अ कोल्ड डे. अब देयर इज अ कोल्ड डे बोलता है साथ, उसको समझ में आया कि अभी क्या करें, क्योंकि देयर इज अ कोल्ड डे बोल दिया उसने और ज़ोर से बोला, तो दरवाज़ा खोल दे इज इक्वल टू देयर इज अ कोल्ड डे. ओके, दिस यूज्ड टू बी द कम्युनिकेशन. और ये एक डॉक्टर हेमंत मुखर्जी, ही इज़ द पर्सन हु हैज़ रिटन अ बुक ऑन दिस कम्युनिकेशंस विथ द फॉरेनर्स. उसके ऊपर एक बुक लिखी है, उसके अंदर ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं एक्चुअली. एंड आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इट हैज़ बीन व्हाट पीपल हैव ऑब्जर्व्ड. तो दिस इज़ हाउ कम्युनिकेशन. बट कम्युनिकेशन इन योर SSB इज़ ए two-way weapon. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यू स्पीकिंग. दूसरी बात यह है कि जब आप ग्रुप के अंदर होते हो, तो ग्रुप के अंदर जब भी आपको कम्युनिकेट करना है, इफ़ यू आर फॉर्चुनेटली बेटर इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, you have not been given right to ridicule your colleagues. You have not been given right to, discuss your friends. Now, like for example, that friend of mine, the poor chap say कि I do not know. It's okay, perfectly all right. I don't have to ridicule him. So there would be some people amongst you whom you have to take up with you. कि यार कोई बात नहीं, ठीक है, I will tell you how it is to be done. And all those instructors who are there, because I have done the GTO's course, they keep observing all these things. कि किस बंदे के अंदर ये स्पिरिट है, किस में ये स्पिरिट नहीं है, और कौन मतलब टीम के अंदर साथ में सबको ले चलने की आदत है या नहीं है. सेल्फिश पीपल आर नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज वो लड़ाई में छुप जाएगा, वो तुम्हारे को मरवा देगा, खुद छुप जाएगा इधर. So your selfish attitude must be hanged at home when you go for the SSBs. ठीक है. दूसरा, जब ग्रुप टास्क होते हैं, ग्रुप टास्क के अंदर इट इज़ द टीम स्पिरिट. इफ़ यू आर फॉर्चुनेटली बेटर एंड somebody is weak, you must extend a helping hand to that guy. Try to bring him. Doesn't matter. उसके अंदर हो सकता है कि तुम्हारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाए, कोशिश करो अपने तरफ से और उसको बोलो ऊपर. लाइक फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ ऑब्स्टेकल, अभी है कि नहीं पता नहीं, एक W करके ऐसे शेप की वॉल होती है. सो यू हैव टू जंप ऑन दैट, देन यू हैव टू गो इन, देन क्लाइंब अप अगेन, देन गो इन अगेन, क्लाइंब अप अगेन एंड देन गो. ठीक है.
जो फिजिकली फिट होते हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं, इधर से उधर जंप मारते हैं, उधर से उधर जंप मारते हैं, बाहर चले जाते हैं। ऑल दोज हु आर फिजिकली नॉट फिट और हु हैज़ गॉट नो कॉन्फिडेंस, उनको बाय मिस्टेक नीचे उतरना ही पड़ता है। तो मेरे साथ में था। सेकेंडली माई हाइट इज़ नॉट एज डिज़ायर्ड वॉज डिज़ायर्ड बिकॉज वो 6 फीट का होता है, दैट इज़ अ 6 फीट वॉल। ओके, तो मेरे साथ में ऐसे हुआ था कि मैं ऊपर जब चढ़ गया तो आई वॉज फिजिकली वेरी फिट फॉर्चुनेटली, बट हाइट वॉज लेस, सो आई जम्प्ड ओवर ऑन द टॉप्स ऑल 3 एंड वेंट ऑफ। बट द मोमेंट आई वेंट देयर, आई केम बैक अगेन and helped my couple of my friends, and then I ran again. So these are the things which are observed by the instructors कि he has got, though he is physically fit, but he has got the spirit कि अपने बंदों को साथ में, क्योंकि लड़ाई में तो आपको सबको साथ में ले जाना है ना, आप पीछे नहीं छोड़ सकते किसी को। So these are the things which are observed in your SSB. Secondly, जब कभी भी आपको कोई सवाल पूछा जाए, नेवर बीट अराउंड द बुश, क्योंकि जो उस्ताद आपको या इंस्ट्रक्टर आपको सवाल पूछ रहा है, ही इज़ मच मोर नॉलेजेबल देन यू। ओके, और उसको मालूम है एग्जैक्टली कि क्या इसका जवाब है। आप यदि उसको उल्लू बनाने की कोशिश करोगे तो बोलेगा फ्रेंड रहने दो, हैं, थैंक यू, ऐसे बोल देगा वो, क्योंकि उसको मालूम है ज़्यादा कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए नेवर फूल अराउंड। यदि कोई चीज़ का आंसर नहीं मालूम है, you should be able to stand upright and say, sorry sir, I do not know the answer, but I will try and find it out. If confronted next time, perhaps I will be able to give the better answer. He will say, understand कि यार the boy has got the courage of conviction, truthfulness. These are the qualities of OLQ also. Officers like qualities में भी यह चीज़ें आती हैं. So these are the factors which every one of you must इनकलकेट इन यू, और हमेशा हर एक चीज़ का पॉजिटिव देखना शुरू करो। यदि तुम आज पॉजिटिव बनना शुरू कर दोगे, यू विल फाइंड देयर विल लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। एग्जामिनेशंस वगैरह में, कॉलेजेस में, इसमें हर जगह के ऊपर यू विल बी ए पर्सन हु विल बी लाइक्ड बाय एवरीबडी। बट ये चीप पॉपुलरिटी नहीं है। वन शुड नॉट गो इन टू चीप पॉपुलरिटी, but at the same time one must develop positive attitude towards life and हमेशा अपना एक attitude बनाओ which should be helping. It should not be selfish attitude ever. Selfish attitude will not help you. It may help you once, it may help you twice, but third time it will not. I can assure you this, right? Okay. इसके बाद में आपको जो सिचुएशन वगैरह की ये आएगी, तो सिचुएशन के अंदर यू हैव टू गिव, यू विल बी ऑलवेज गिवन ट्रिकी पिक्चर्स। अब वो ट्रिकी पिक्चर्स में से आपको इन्फ्रेंस जब निकालना है तो यू हैव टू ड्रॉ अ करेक्ट लाइन कि इसमें कौन सा चीज़ करने से बेनिफिशियल है, कौन सा चीज़ करने से बेनिफिशियल नहीं है, एंड यू सिलेक्ट दोज आइटम्स अकॉर्डिंगली एंड परहैप्स यूर लाइन ऑफ थिंकिंग विल बी जस्ट करेक्ट। ओके, ये बातें ध्यान रखनी है, राइट? अभी एनी अदर सिचुएशन एंड दैट यू थिंक दैट यू वांट टू अच्छा, नाउ बिफोर दैट एनीबडी हैज़ गॉट एनी अदर क्वेश्चन टू आस्क मी? शूट विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स, और कोई संकोच नहीं करना। वॉट एवर शिट दैट यू वॉन्ट टू पास आउट डाउन टू मी, पास इट डाउन टू मी। जो भी तुम्हारे मन में डाउट है क्लियर करके जाओ यहाँ से। नेवर गो विद अ बैफल्ड स्टेट ऑफ माइंड। ओके, किसी को भी कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी आपको नैगिंग कर रही है कोई चीज़, बताओ, मेरे को पूछो। आई एम हियर टू आंसर यू एंड आई एम नॉट हियर टुडे, आई एम अवेलेबल राउंड द क्लॉक। वेन एवर यू फाइंड कि इज देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ माइंड, यू कैन समन मी, आई विल कम। हाँ, yes. Sir, optimism is being positive, but does being optimism mean ignoring all the destruction that has occurred? For example, when landslide occurs, it causes a lot of destruction, but at the same time the area gets plain, which can be utilized further. So can we ignore, for the sake of being optimistic, can we ignore the
destruction it has caused. What do you exactly mean by optimism? Looking at the brighter side. or the Brighter side of the story. positive side. Now, landslide हो गई. What is the brighter side in that? The only thing, the more destruction is there. No, it is not. You can think, you can say कि चलो अभी लैंडस्लाइड हो गई. Now there is a positive thing in that. Now the precaution will be taken by the government. They will wire up the complete area, and in future it will not happen. I will tell you an incident related to this. Optimism. There is a exercise called as LRP in military parlor. LRP is nothing but long range patrol, right? Now long range patrol is a group of physically fit people. They carry their complete loads on their back, and they keep walking in the mountainous area close to the enemy territory. They keep studying the enemy deployment and various other tasks which are been given to them. ठीक है. तो ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, जोशीमठ वगैरह का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं. Anybody who has heard जोशीमठ? Okay. जोशीमठ is a area from where earlier जो मानस सरोवर के लिए जाने वाला रास्ता था वो जोशीमठ से होकर के, फिर वैली ऑफ फ्लावर्स से होकर के, फिर हेमकुंड साहब करके एक जगह है जहाँ सिख गुरुद्वारा है, वहाँ से लेकर के आगे जाता था. एंड देन इट यूज़ टू एंटर थ्रू टिबेट इनटू चाइना. मुझे एक्चुअली टिबेट में ही था. तो वो एरिया के अंदर पेट्रोलिंग करने का हमारे को टास्क दिया गया था. सो वी वेयर अबाउट 20 पीपल. हमारे पास पूरे वेपन्स थे, एम्यूनिशन था, एवरीथिंग वी वेर कैरिंग, एंड खुद का खाना पूरा 15 दिन का. तो एवरी वन इंक्लूडिंग आवर स्लीपिंग, बिकॉज दैट एरिया इज एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड. एंड हम जब गए थे उस टाइम के ऊपर तो सर्दी के दिन थे, बर्फ़ भी गिरती थी. तो इसलिए हमारे पास जो सामान था, एवरीबडी वॉज कैरिंग मिनिमम वेट ऑफ अबाउट 40-45 kgs, क्योंकि 15 दिन का खाना है, तुम्हारे कपड़े हैं, उसके बाद में तुम्हारे शेविंग किट्स वगैरह हैं, एंड एम्यूनिशन है, वेपन है. तो ये सब मिला के वेट तकरीबन 45 kgs के पास में वेट था. ठीक है. अब हम जा रहे थे, हमारा एक्चुअली जो शेड्यूल था उस शेड्यूल से हम ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 डे हम पीछे रह गए थे. एंड दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द एरर इन आवर कंपास, मैग्नेटिक कंपास. एनीवे, तो हम जब जा रहे थे तो हमने डिसाइड किया कि हम इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस वी विल टेक ए शॉर्टकट एंड वी विल गो फ्रॉम हियर. सो हम जब ऊपर चढ़ कर के गए तो पहाड़ी जब ऊपर चढ़ के गए तो वहाँ एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए थे. एज पर द मिलिट्री रिकॉर्ड उस एरिया में कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसकी गारंटी थी. अब वहाँ ये साधु महाराज कैसे पहुँचे? दूसरी बात यह है कि दैट मैन वॉज सो, ऐसा तेजपुंज आदमी था वो, कि उसकी तरफ देख करके ऐसे लगा कि किसी महात्मा को मिल रहे हैं हम. उसने हमारे तरफ सिर्फ देखा और हमारे तरफ ऐसा इशारा किया कि बैठ जाओ. यू विल नॉट बिलीव इट, जैसे कोई किसी के ट्रांस के नीचे आ जाता हो, वैसे जैसे हमारे ऊपर किसी का जादू चल गया. और हम लेट हो रहे थे, फिर भी हम आज बेवकूफ़ जैसे बैठ गए. 45 minutes वी केप्ट ऑन सिटिंग देयर. एंड दिस जेंटलमैन, ये साधु महात्मा जो थे, इन्होंने हमारे से बात तक नहीं की. आफ्टर 45 minutes उन्होंने हमारे को सिर्फ ऐसा किया कि जाओ. तो हमने उनके पैर छुए, नमस्कार किया और हम चले गए. यू विल बी सरप्राइज उस रास्ते से जाने के लिए, बिकॉज पहाड़ों के अंदर जब जाते हैं तो एक ही सकरा रास्ता मिलता है. कहीं पगडंडी मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज यू हैव टू मूव ऑन वेरी वेरी नैरो पाथ.
तो वहाँ से एग्जैक्टली 45 मिनट्स पे हम जब गए तो पहाड़ी ऐसी पूरी की पूरी लैंडस्लाइड हुई थी. नाउ यू जस्ट इमेजिन, हैड वी बीन देयर वी वुड हैव बीन वॉश्ड अप. नाउ इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दैट. ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा अपब्रिंगिंग हर जगह ऐसा ही है. हम धर्म में, इसमें हर एक फेथ में हम विश्वास रखते हैं, चाहे कोई भी हो, मौलवी हो, फादर हो, ज्ञानी हो, पंडित जी हो, साधु महात्मा हो, हम बिलीव करते हैं उनके अंदर कि भाई वो पहुंचा आदमी है, उसकी बात सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है. यदि हम उनकी बात नहीं सुनते और हम चले जाते, लेकिन उनकी पावर इतनी थी कि जैसे उन्होंने हमारे ऊपर जादू कर दिया और हम बेवकूफ़ जैसे वहाँ बैठ गए. 45 मिनट हम बैठे रहे. एंड द ब्यूटी इज़ कि वहाँ से हम जिस रास्ते से गए, उस रास्ते से जा कर के हमने आगे वाली जो पहाड़ी पे चढ़ना था, वो ही रास्ता सबसे नज़दीक वाला रास्ता था एज़ पर द मैप. ठीक है. To our utter horror and surprise, when we climbed up that peak, we saw the same gentleman sitting there on the tree. तो मेरे जो सरदार जी वगैरह, मेरे जो ट्रूप्स थे, वो सब सरदार थे खालसे. तो वो मेरे को पंजाबी में बोलता है, मेरा जेसियो साहब जी, आप बाबा जड़ा आप बहुत पहुँचा हुआ लगता है, परमात्मा लगता है, इधर पैर छुओ और चलो. ठीक, कोई नहीं, गलती करनी नहीं, तो पता कहते नहीं और बैठा देगा कोई 45 मिनट. मैं क्या ठीक है, कोई नहीं. वी वेंट, वी लिटरली टच्ड हिज फीट एंड वी वेंट. सो दिस इज़ अ ऑप्टिमिज्म. वी सॉ पॉजिटिव थिंग इन टू दैट. देयर आफ्टर वी वेर behind the schedule, but because of that shortcut which we took, we were able to make up for whatever losses that we had done. ऑप्टिमिज़म होना चाहिए, लेकिन फुल हार्डीनेस नहीं होना चाहिए. अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो बारिश वगैरह हुई, आप लोगों ने टीवी के ऊपर बहुत बार देखा होगा. ब्रेवडो दिखाने के लिए 3-4 कॉलेज के स्टूडेंट्स ये भेड़ा घाट के पास में सेल्फी ले रहे बेवकूफ़ जैसे वहाँ. अब पानी आ गया, अब मतलब बेसिकली आइडिया कि यहाँ जा कर के ये, अरे तुम अपने आप को क्यों डेंजर्स में डालते हो यार. जहाँ ज़रूरत है वहाँ डालो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत डालो. अरे यार सेल्फी ने तो पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखा हुआ. एनीवे, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. नेवरदलेस, सो ऑप्टिमिज्म होना चाहिए. ऑप्टिमिज्म इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग. यू शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक. हर एक चीज़ में से जो भी बुरा होता है उसमें से अच्छा ही ढूंढो, and you will find that your life will be comfortable. You will always be in a very very positive frame of mind. खुश रहोगे, और नहीं रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, रोते ही रहोगे. तो this is optimism has got its own positives also, negatives also, but correctly valued optimism is always beneficial. It will always increase your spirit, and it will help you to improve on your all doings, everything, because you are optimistic in everything. यदि किसी ने तुम्हारे को डांट दिया, बोल दिया, अरे यार तुमने ये सोचो कि वो उसने हमारे भलाई के लिए बोला है. छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे गुरु रामदास स्वामी. उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है. क्या नाम है उसका? दासबोध. I have read that दासबोध minimum 17 to 18 times. ओके. और मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूँ, यदि उसका करेक्ट एनालिसिस किया गया तो दैट दासबोध इज द जिस्ट ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट दैट वर्ल्ड कैन टीच एनीबडी. दैट इज द मैनेजमेंट का गुरु है वो ग्रंथ, लेकिन उसका करेक्ट एनालिसिस करते आना चाहिए. उसमें उन्होंने अलग अलग हर एक चीज़ के ये दिए हुए, मूर्ख के लक्षण दिए हुए उन्होंने. नाउ लुक एट दैट मैन. गुफा में रहे वो, कभी कभी जाते थे, और वहाँ बैठ करके उनका बुद्धि इतनी है, एनालिसिस ऐसा किया कि जो मूर्ख थे वो उनके पूरे लक्षण दिखा दिया. जो अपनी डींग हमेशा हाँकते रहता है उसको सबसे बड़ा गधार बेवकूफ़ है. ये उन्होंने लिखा हुआ.
मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम अपनी डींग मारते रहोगे और जब मैं बोलूँगा कि यार तुम करके दिखाओ तो फिर तुम्हारे को आएगा नहीं, तो तुम बेवकूफ़ जैसे पकड़े जाओगे ना। करना क्यों, नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये है कि ऑप्टिमिज्म का, एज इफ यू हैव राइटली सेड, कि ऑप्टिमिज्म इज अ पॉजिटिव थिंग प्रोवाइडेड यू अप्लाई इट एट द करेक्ट प्लेस एंड करेक्ट उसका एनालिसिस करके अप्लाई करो उसको, ठीक है, राइट। एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी? Yes, sir. Yup. So there are certain personal questions asked by the interviewer. Say for example, he asked me, give me one secret your best friend shared with you and you aren't supposed to share it with anyone else. So are we supposed to give him the answer? Are we supposed to share it with him? You say yes, she has shared with me. No, but if he asks me, okay, now give No. me If he says कि tell me, do you want me to share that secret with you? He says yes, I want you to share. But will you take it in the negative form? Question him. You have got the authority. मैं यदि तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं बोलूँगा और तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे को बोला है कि तुमने बिल्कुल नहीं बताना है किसी को, सर माई फ्रेंड हैज़ ट्रस्टेड इन मी नॉट टू टेल एनीबडी, यू वांट मी टू टेल यू? Why are you trying to tell me that I should distrust my friend? That man will understand कि yes, she is positive, she is very very bright. Okay? मैं जब इंटरव्यू के लिए गया, you will be surprised. The moment I entered, they made me sit. He says, friend, तुम्हारे वॉल के पीछे का कलर क्या है? तो मैंने बोल दिया वाइट, जो सामने दिख रहा था मेरे को वो बोल दिया। I did not turn back. Had I had turned, he would have failed me. कहते how do you know it is white? I said, sir, so far the pattern is that one room is given generally one color. Walls are not painted in different shades. You understood? तो ऐसे ऐसे सवाल होते हैं which will at the nick of the moment he will ask. He says, अरे तुम्हारे उंगली में क्या लग गया? The moment you see it, you are failed. अरे तुम्हारे उंगली में कुछ लगा ही नहीं तो तुम्हारे, मेरे तो उंगली में कुछ नहीं लगा, यू से, क्योंकि यदि कुछ लगा होता तो तुम्हारे को पेन तो होता है ना, पता तो चलता ना। तो ऐसे निक ऑफ द इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट शोज योर अलर्टनेस, हाउ मच अलर्ट यू आर। ठीक, तो डोंट गेट शाय अबाउट इट, बट यू शुड बी एबल। देखो, इंस्ट्रक्टर आपको सवाल पूछता है, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर नॉट अथॉरिटी, यू आर नॉट अथोराइज टू आस्क हिम ए क्वेश्चन, ओके, बट योर क्वेश्चनिंग क्वालिटी शुड नॉट बी एरोगेंस, ओके, एरोगेंट नहीं होना चाहिए, शुड बी वेरी वेरी पोलाइट, हम्बल, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, मेरे को यदि बोलते तो है, डू यू वांट सर मी टू शेयर विद दैट सीक्रेट विद यू? Why? And will you take it negative whenever I am, because now I am, if I share it with you, you will grade me that I have let out the secret to you. You expect me to do that? वो बोला कहता है, okay, I will not grade you like this, please share it with me. Then you should say, okay sir, since you are insisting, I will tell you, but otherwise I am not supposed to tell you. And you should also give me a solemn promise that you will not share it with anybody. बस, okay? Question him then and there. Then he will understand कि yeah, देखो, is something which she wants to be very very clear about it. चलो, any other questions? Anybody else? We can take questions. We can take questions. If we don't answer a particular question asked by the interviewing officer, would it look negative on us that we don't have awareness about the environment? No, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, you should be able to clearly say, rather than giving a false answer to him, you should say, sorry sir, I do not know the answer for you. He will understand and that will go positive in your favor, because that comes as courage of conviction. मुझे मालूम नहीं और मैं सट्टे मारता रहूँ
तो फिर तो बहुत गलत बात है ना. सो नथिंग टू गेट वरीड. और ऐसा नहीं है बेटा, इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं, उसमें से मैं आई एम नॉट ए इंसाइक्लोपीडिया है ना, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई हैव माई ओन लिमिटेशंस. तो मैं कहीं बता सकता हूँ, कहाँ नहीं बता सकता हूँ. दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड दैट, राइट सर. और कोई? देखो भाई, आज तुम्हारे को कुछ सवाल है तो फटाफट क्लियर कर लो, फिर बाद में एक छोटी बहुत क्या एक्सरसाइज देने वाले. हाँ बोलो. अच्छा, यू टेल मी, व्हाई शुड नर्वसनेस पीप इन टू यू? Because you haven't seen that public. Ah? You haven't appeared before, and you haven't seen that environment. अच्छा, मुझे एक बात बताओ. यू व्हाट आर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस? The 12th also, and first year is going on with this. 12th you passed in first attempt, Yes. huh? Yes. Good. So you appeared for 12th examination first time or second time? The first. तो फर्स्ट टाइम में आया तो नर्वसनेस हो गया था? नो, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड. दैट्स व्हाई दैट नर्वसनेस वाज नॉट देयर. ओके, सो ऑलवेज प्रिपेयर योर सेल्फ वेल. ओके, देखो फियर साइकोसिस नहीं होना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा इंस्ट्रक्टर? तुम्हारे को सिलेक्ट नहीं करेगा, इतना ही होगा ना. ही इज़ नॉट गोइंग टू हैंग यू अपसाइड डाउन. ही हैज़ गॉट नो अथॉरिटी टू हैंग यू अप, इजंट इट? तो डरना किस बात? ठीक है. तो कभी भी हमेशा जब भी आप कहाँ जाते हो एग्जामिनेशन के लिए कहीं भी, फर्स्टली यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ वेल. और ये जो मैं तुम्हारे को बता रहा था कि स्वैट एनालिसिस करना रोज़ रात को शुरू करो, इसका बेसिक पर्पज़ ये है, यू शुड नो योर वीकनेसेस. देखो पॉजिटिव तुम्हारे कितने हैं वो तुमने जज नहीं करने, वो तुम्हारे फ्रेंड्स जज करेंगे. इफ़ दे नो कि यार शिरीष एक ऐसा बंदा है कि तुम उसके पास कभी भी चले जाओ, ही विल ऑलवेज गिव यू अ सोल्यूशन, तो तुम हेजिटेट नहीं करो. और मेरे को यदि ये एटीट्यूड नहीं है कि मैं हर एक चीज़ को पॉजिटिवली आपको समझाने का कोशिश करूं रादर देन रिडिक्यूलिंग यू, तो तुम मेरे पास आओगे. नहीं तो बोलोगे यार उसके पास कहाँ जाना, साला टाइम वेस्ट करता है, वो बकवास करते रहता है, और आपने को साला जो पंप मारना है वो निगेटिव पंप मार देता है. वाई शुड यू कम टू मी? यू विल नॉट. बट दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई एम इंसिस्टिंग अपॉन यू, दैट यू शुड बी एबल टू कैरी आउट रोज रात को सोते टाइम के ऊपर कैरी आउट ए स्वैट एनालिसिस ऑफ योर्स, कि आज मैंने पूरे दिन में टाइम कितना वेस्ट किया है और मैंने अपने अपब्रिंगिंग के लिए क्या किया. इफ़ यू डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, पॉजिटिव, गुड. इफ़ यू रीड सम बुक्स, गुड, पॉजिटिव. फिल्म मैगजीन मत पढ़ो, वो बकवास. ठीक है. नॉलेजेबल के लिए कोई नॉलेज, एनीथिंग विच इन्हांसेस योर नॉलेज, रीड इट, दैट विल हेल्प. लिसनिंग टू द इंग्लिश न्यूज़, इंग्लिश पेपर, उसको स्टडी करो, पॉजिटिव है. ठीक है. आपके अंदर कोई हॉबी है, इफ़ यू आर ए लवर ऑफ म्यूज़िक, इफ़ यू आर लवर ऑफ ड्राइंग, पेंटिंग, स्किल्स है या कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हो, वो करो, दैट इज़ पॉजिटिव, वो अच्छा है. सो दैट विल ऑलवेज ब्रिंगिंग यू अप. तुम्हारी पर्सनैलिटी बना रहा है वो, दोज हॉबीज़. ठीक है. बट तुम यदि बेवकूफ़ जैसे सिर्फ पिक्चर देखते रहोगे, टीवी देखते रहोगे, और उसके ऊपर नॉट वर्थ वाइल प्रोग्राम्स दैट यू आर वॉचिंग, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम. दोस्तों के साथ में गप्पे मारना है, मारो ज़रूर, वो भी ज़रूरी है. थोड़ी देर के लिए जाओ, हैव सम टाइम, इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल वहाँ डेवलप करो, दैट इज़ गुड. लेकिन वहाँ जाने के बाद में कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डिस्कस करोगे तो दैट इज़ ऑफ हेल्प. वहाँ जा कर के यार आपने दोस्तों को क्रिटिसाइज़ करोगे, यार टीचर्स को क्रिटिसाइज, यार वो बड़ा चूतिया है, ये ऐसा है वैसा है, साला गधा है, वह है, क्या फ़ायदा है यार. इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम. ऐसे नहीं करो. सो डू दैट एंड आई कैन बेट यू, I give you this solemn word today, that if you carry out that analysis regularly and close down on your weaknesses, you will find your personality will start flourishing like a beautiful boom. Okay?
एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग. आप करके देखो, डू इट फॉर एटलीस्ट 1 वीक करके देखो और उसके ऊपर एक्ट करना शुरू करो. यू विल फाइंड द चेंजेस वुड स्टार्ट कमिंग. क्यों नहीं होगा? अरे यार, सर्कस का जो शेर नहीं होता है, उसको रोज पीटता है वो, इधर से उधर जंप मारता, फट से मारता है, वो मारता है कि नहीं? बिकॉज इट हैज बीन ट्रेन्ड टू डू दैट. If you train yourself, you will always find the wonders would start coming to you. It is nothing that is not possible. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो नहीं कर सकते. Okay? So do that. And nervousness is a bad thing. Get rid of it. कभी भी ऐसा मन में भी नहीं लाना कि नर्वस नहीं. क्यों नर्वस ना होना यार? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? फेल हो गया कि इतना ही होगा ना. बट जो प्रिपरेशन करके जाना है वो अच्छी तरीके से तैयार करके जाना. So that you should be able to answer correctly, right? अपने आप को खुद को strong बनाओ. ठीक? Yes. Anything else? Anybody else? Yep. So I would like to just humbly correct one thing that you have said that. Huh? So I would just like to correct one thing that you have said a fact about the NCC. There are not 27 directorates, there are only 17 directorates. Fine. I would want Maybe. to admit to that. Maybe. Anything else? So if there is a first and last chance with us to go and make the interview, so what all are the things we should carry? Like what are all the packages should be there within us to go and meet the interview? If there is a first and See, last chance. whenever you go for SSB, there's a list of things which generally they say कि ये चीज़ें तुमको साथ में लाने हैं. आता है? लिस्ट आती है? Yes, sir. No, I'm not talking about the things like how we should get prepared for the first and if we are having first and last chance, how should we get prepared for it? देखो, SSB के लिए बेसिकली जो तुम लोगों को जैसे बताया कि उसके अंदर तुम्हारे क्या क्या टेस्ट होती है. एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है. साइकोलॉजिकल टेस्ट में तुम्हारे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड्स होना चाहिए, पॉजिटिव आउटकम्स होने चाहिए तुम्हारे आंसर्स के. दैट इज़ वन. सेकेंड थिंग इज़ तुम्हारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है. नाउ कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों ज़रूरी है? बिकॉज तुम्हारा जब ग्रुप टेस्टिंग होती है तो उसके अंदर देवर में एक्सटेम्पोर टॉपिक दे दिया जाएगा. सपोजिंग इफ आई गिव यू अ टॉपिक एंड आई विल टेल यू दैट यू स्पीक फॉर ओनली 1 minute, राइट? बिकॉज टाइम ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है. नाउ लेट्स टेक ए सब्जेक्ट कि मोबाइल इज़ ए one is positive, that is invent of mobile is positive and invent of mobile has got negative effects on the society. Now somebody will say कि I will speak against, somebody will say I will speak in positive, right? Now let's take a hypothetical case. If I am the examiner and I am the group testing officer, I will say okay, I will decide. You will speak positive, you will speak negative, you will speak positive, you will speak negative. Now the moment that is done, whatever the shot is coming to you, you should be able to analyze कि मेरे को 1 minute में यदि बोलना है तो मेरे को कौन से ज़रूरी पॉइंट है जो मेरे को बोलने हैं. Your mind should be able to quickly analyze it, right? अब यदि let's take a positive case of that. Firstly, it improves the communication of everybody because चाहे वो अभी तो हिंदी में आना शुरू हो गया, लेकिन उनको टाइप तो करना ही है ना लिखने के लिए. तो करेक्ट वो टाइप करने के लिए तुम्हारे को जब तक खुद को कॉइन सेंटेंस नहीं कर सकते, इफ़ यू नो हाउ टू कॉइन ए सेंटेंस, दैट मीन्स व्हाट, यू आर लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? तो तुम्हारे यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली. तो इसलिए तुम्हारा कम्युनिकेशन होना एक तो वो पॉजिटिव पॉइंट है. इट पासेस नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू यू. हमारे को कुछ व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से तुम लोगों को अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज़ अ बकवास यूनिवर्सिटी एक्चुअली. वो कुछ भी जिसको रात को ख्वाब आता है वो दूसरे दिन टाइप कर देता है उसके ऊपर. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. वो विल नॉट गेट इनटू दैट. बट द फैक्ट इज कि इट स्टिल हैज़ गॉट वन पॉजिटिव एस्पेक्ट दैट इट कैन पास द नॉलेज वॉट एवर दैट आई हैव गेन्ड, आई हैव पास्ड इट डाउन टू यू. ओके. Third thing, I been given a platform whereby my voice will be heard by everybody. So that is also a positive aspect of this. ठीक है. तो ऐसे तुम लोगों को able to, you should be able to analyze complete कि मैंने क्या क्या बोलना है उसके अंदर. 3, 4, 5 पॉइंट ले लो और वो 1 मिनट के अंदर उसके ऊपर समराइज़ करो. निगेटिव देख लो.
इससे बच्चों की आंखें ख़राब होती है, चिल्ड्रन गेट एडिक्टेड टू इट, ठीक है. एंड दिस इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ बीन गिवन फॉर डिस्ट्रैक्शन ऑफ द माइंड फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है. दैट यू कैन से. एंड सेकेंडली एंड वर्स्ट थिंग इज़ कि चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू सच साइट्स विच आर अनडिज़ायरेबल फॉर देम, ठीक है. तो दीज आर द फैक्ट्स ऑन विच यू शुड इम्प्लीमेंट कि भाई ये मेरे निगेटिव्स है, सो आई एम पर्सनली फील. एंड यू शुड नॉट से कि किसी ने बोला है तो आई डोंट एग्री विद हिम, ऐसा नहीं बोलना है कभी भी ग्रुप डिस्कशन में. ओके, से कि माई लर्नेड फ्रेंड हैज सेड दिस थिंग, perfectly all right, but I have got a different view. You have conveyed that you don't agree with him. At the same time, you have put up your point also, and with decency, right? So that part must always be taken into consideration wherever you are going for the interview, right? और last but not the least, ये जो communication skill है, psychological है, physical fitness. Physical fitness is very very important, है. You people must not overlook that. यदि आप लोग एसएसबी के लिए जा रहे हो तो आपको फिज़िकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. एंड विथ ड्यू रिस्पेक्ट I would like specially to tell the girl officers, girl candidates who are here, that you people should see your साइकिल्स कौन सी है, उसके हिसाब से यू शुड बी प्रिपेयर्ड. और उसके हिसाब से यदि तुम्हारे को कुछ मेडिसिन्स वगैरह लेके जाना है तो दैट यू मस्ट नॉट फॉरगेट अबाउट इट. और मैं इसलिए ये पॉजिटिवली बता सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ में राजपथ में जब लड़कियाँ थी तो देयर हैव बीन सर्टन सीवियर प्रॉब्लम्स विच आई फेस्ड. तो इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि ये पर्टिकुलरली गर्ल्स कैडेट्स के लिए, गर्ल कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है. इन बातों को, इनका ध्यान रखना है ज़रूरी. एंड डिस्कस इट आउट विद योर मेडिकोज और योर मदर्स और योर एल्डर पीपल इन द फैमिली एंड टेक देयर एडवाइस एंड गो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है. नेवर ओवरलुक दैट एस्पेक्ट. एनी अदर क्वेश्चन? एनीबडी एल्स? Sir, how to build self-confidence? सेल्फ कॉन्फिडेंस बताओ, तुम बताओ मेरे को. अच्छा, लेट्स हैव इट फ्रॉम द क्लास. क्या करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए? Sir, confidence comes from the knowledge, so we can majorly focus on improving our knowledge. Knowledge. Okay. What else? Practice it by standing in front of mirror and looking into your eyes and then try speaking out loud. Okay. Right. Next. Then stand in public and speak. Standing in public and speaking. Okay. जोर से बोलो बेटा. Okay. So the point has been covered. Okay. Not to afraid that whatever comes from one person is thinking or facing. What else? I will like to Okay. Yeah. Firstly, I will go with my Okay. knowledge. Knowledge. Knowledge, build your confidence, and other to interact with more and more people in public. Right. That is, you are developing your communication skills. You mean to say. Okay. Fine. Sir, the thing that you have told us that before going to bed, just do the systematic SWOT analysis. I think that is enough. Okay. Okay. हाँ बेटा. Any idea, or you agree with all the whatever the points that they have given? You agree with them. You have got no addition from your side. Huh? Good. Right. So actually, I had the same point. I also practice it for myself. I stand in front of people Yeah. and try and Practice. Practice काहे की? What practice? The question is, what question did he ask? Self? Repeat your question. सेल्फ कॉन्फिडेंस. हाँ, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में प्रैक्टिस क्या करोगे? यू आर नॉट रॉन्ग, बट यू शुड बी एबल टू एनालाइज व्हाट प्रैक्टिस. यू डू नॉट नो. हाँ, हमेशा जो बोलोगे यू शुड हैव ए बैकअप फॉर दैट, राइट? डोंट जस्ट से फॉर दैट गे
प्रैक्टिस तो ठीक है, किस चीज़ की प्रैक्टिस? या Knowing yourself. हाँ, By knowing yourself. नोइंग योर सेल्फ, ओके फाइन. We have to face, we have to face in public place or with our seniors, interact with our seniors or teachers. Automatically our self-confidence slowly build up. Okay. अच्छा, whatever that you people have said is absolutely correct. Nothing wrong in that. लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले तुम्हारे को अपने आप को समझाना पड़ेगा कि आई एम कॉन्फिडेंट यार. नॉलेज विलेज तो सब है, जब तक मेरे को ये खुद का एहसास नहीं हो, मेरे को खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो कि आई एम कॉन्फिडेंट यार, नॉट टू वरी, डोंट वरी, चलो मेरे साथ में, तब तक तुम्हारे को ये चीज़ें कोई हेल्प नहीं करेगी. अंडरस्टूड? बट दीज आर द फंडामेंटल्स विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट. You should have knowledge, you should have good communication skill, you should be able to stand upright and accept the things whether it is correct or wrong, and if it is befallen on you, you should be able to accept कि हाँ मैं गलत हूँ. Okay, that shows your confidence कि यार ये बंदे में है, दम है, इसको मालूम है कि क्या है कर रहा है. ठीक है. सो एनालिसिस, पर्सनल स्वैट एनालिसिस वगैरह बिल्कुल ठीक है. स्वैट एनालिसिस करोगे तो तुम्हारे को ये सब खत्म हो जाएंगे. तुम्हारे एग्जामिनेशन के पहले पसीने छूटने खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम तैयार कर रहे हो अपने आप को. अंडरस्टूड? तो दीज आर द एस्पेक्ट विच वन मस्ट नॉट ओवरलुक इन लाइफ. ठीक है, चलो भैया, आई थिंक वो ओवर शॉर्ट टाइम है. Any questions you have? Any more questions? Yes, sir. क्या? So we can conclude then. हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी SRT, you would like sir, to- I would like to take, if हाँ. you have time, few SRT. नहीं, but if they are going to be delayed, then we can have this session. If they have got more, their I hope I have not disturbed their schedule. No, 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 sir. Huh? No, no, sir. Absolutely not. हाँ, Absolutely not. sure. Yes, sir. So, चलो then quickly we will finish it up. yes, sir. A few SRTs. I want you guys to first answer the. So you can So I can हाँ, so ये काफी ज़्यादा है. Okay, you can. Sir, he comes from Kanpur, a little far off place. You can. So we'll take few situations. Okay. And so there are 4 tests that are conducted in psychology, as we all know, that were SRT and SC, right? So उसमें से SRT है situation reaction test. There are 60 situations that are given and you are given 30 seconds to write one situation. So this exercise lasts for 30 minutes. Okay, so we'll take few situations and then we'll have answers from you guys and then followed by an answer by Shri sir कि वो वैसे सिचुएशन पर होते तो कैसी वो कैसे आंसर. And then you analyze yourself कि भैया मैं कितना करेक्ट हूँ या मैंने, because as it is said there is no right or wrong answer but an appropriate answer has to be there. Okay, washroom जाना है, okay, you can go to the washroom. So we'll have the first SRT. Just listen, no need to write. He has gone. He has done something which he should have not done. He is being confronted by friends. He would. He has done something which he should not have done. He is being confronted by friend. He would. Now answer. Those who have answered, they can raise their hand and can reply.
please. So he'd apologize and cut off the matter there and then. You have been given how much time to write? 15 seconds. 15 seconds. 30 seconds. And 30 then seconds, okay. Think and 30 then seconds. 30 seconds. Right. Okay. Sir will accept his mistake and then he'll try to rectify it. Will not repeat it again. Okay. Yep. I had the same answer actually. He would accept his mistake and he would try to make it correct in every way possible. Dekho, I will tell you one thing. Now this, so far the Prasanna ji has given you one situation is perfectly all right. But when you write, nobody is listening to you. So people are not getting influenced. Right? Abhi hua ye, she has given one answer, everybody's mind has started hovering on that. वो नहीं होना चाहिए. You should think of your own. Right? Let's take a hypothetical case. ये ऐसी सिचुएशन तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारे को कि पैसे कहीं रखे हुए हैं और तुमने किसी चीज़ के लिए फालतू चीज़ के लिए यूज़ कर लिए. अब घर में तुम्हारे को पूछा फादर ने कि भाई आप पैसे रखे हुए थे, किसने लिए, क्या लिए. राइट? इट इज़ समथिंग सिचुएशन लाइक दैट ओनली. So you should have that moral courage to accept what you have said is very correct. And that is the correct answer also. And let me tell you one thing. These tests have got no correct or wrong answer. How you put it across and your justification of that should be acceptable. That is what the important crux is. Have the moral courage and accept your mistake to your friends. Convince them it will not be repeated in future. That's all. बस काम खत्म. तो you should be able to briefly answer the question, क्योंकि आपके पास 30 सेकेंड है. 30 सेकेंड में लिखना है, और यदि आप उसको भूल गए तो उसके बाद में लिख नहीं पाओगे, क्योंकि वो स्लाइड्स इतनी धड़ाधड़ आते चली जाती है और फिर उसके अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है. अंडरस्टूड? सो यू शुड बी एबल टू इमीडिएटली एनालाइज एंड राइट द आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. He is presented where an accident has taken place and mob has started thrashing the driver. He would. He is present where an accident has taken place and the mob has started thrashing the driver. He would. Yeah. So he would separate the mob from the person, from the driver, and he will look after if he needs any first aid. Okay. So first of all, he'll save the driver, then he'll take the person who has met in an accident to the ambulance, to the nearest hospital, and apart from that, he'll inform the police about the things that are happening. Okay, good. Very nice. What else? Anybody else? Now just analyze this situation. First and foremost important thing is what? Accident हुआ. Foremost thing is those casualties needs to be attended. So rather than mob को बताओ कि भाई पहले इनको शिफ्ट कराओ हॉस्पिटल में. Some people volunteer and send them. Inform the police. That is second aspect. And third one is खुद खड़े हो जाओ और उसको बोलो इसको मत मारो, इसको जो भी सज़ा देनी है लॉ देगा और पुलिस देगी, तुम मत करो. और यदि मॉब ऑलरेडी हैज़ स्टार्टेड हिटिंग देम, then you have to inform police on the top priority to come down immediately, otherwise this man will die. Because you alone possibly will not be able to confront and stop the mob, because mob fury is something which is beyond your control. Okay, so analyze it. सबसे पहला क्या है कि जो कैजुअलिटीज़ हैं उनको अटेंड करो. सेकेंड थिंग इज़ यदि तुम बचा सकते हो तो ड्राइवर को बचाओ और उसको बोलोगे ना पुलिस को बुलाओ इमीडिएटली सेंड समबडी टू पुलिस एंड पुट हिम अंडर अरेस्ट टू द पुलिस. यदि वो ऑलरेडी मॉब इज़ ऑलरेडी ऑन देन द सेकेंड थिंग इज आइडियल इज़ टू कॉल द पुलिस इमीडिएटली, बिकॉज यू इट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल. और तुम इतने हनुमान जी नहीं हो या भीम दादा नहीं हो कि तुम सबको मार करके वो ये कर सकते हो, नहीं कर सकते. तुम बेस्ट इज के take the correct logical view of the complete situation and answer that. Okay, next. He was called upon to organize a
a variety show in his school or college, he would. Hmm. He takes up the responsibility and organizes accordingly. Okay. So he'll take the responsibility, he will call his friends, he will deviate the responsibility to the others, and then he'll successfully complete the task. Okay. He will plan for the program and will work accordingly. Yeah. He'll take up the task, distribute the task, decide the venue and location, venue and time, and will successfully conduct it. But what is the question? Repeat the question, please. He was called upon to organize a variety show. In his school or college, he would. Variety show. Now, the bottom line, you people must understand in a sentence what is the important thing. Organizing program is not only program, it is a variety show. So, what is required? Simple answer is carry out a talent search in the college, accept and distribute responsibilities, conduct it on the given date. क्योंकि जब तक वो नहीं करोगे तुम्हारे वेराइटी एंटरटेनमेंट होगा क्या? तुमने सब अरेंजमेंट कर दी, प्रोग्राम डिसाइड कर दिया. अरे क्या प्रोग्राम डिसाइड किया भाई? जब तक तुम टैलेंट सर्च नहीं करोगे प्रोग्राम कैसे डिसाइड करोगे? अंडरस्टूड? तो ऐसा तुम्हारा दिमाग इमीडिएटली चलना चाहिए. हर एक इसमें सेंटेंस में एक कैच वर्ड होता है. दैट कैच वर्ड यू मस्ट कैच करेक्टली. ओके, अब इसमें क्या है? वेराइटी एंटरटेनमेंट है ना. अब वेराइटी एंटरटेनमेंट के लिए तुमने बोला हाँ प्रिपरेशन कर लिया, सब कर लिया. काय की प्रिपरेशन की तुमने? हैव यू डन द टैलेंट सर्च कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा? तो टैलेंट सर्च करना ज़रूरी है उसके लिए, वेराइटी के लिए. हाँ, ओके, चलो नेक्स्ट. He feels strongly that a person can achieve a lot if he has the determination and the courage to do it. So if you please Repeat once. he, Isn't he it feels incomplete? he feels strongly that a person can achieve a lot if He feels strongly. Okay, that is his conviction. Okay, he feels strongly. What? The second that a part is person can achieve a lot if he does what? If he sets his target and works towards it. Okay. So he will do SWOT analysis, he'll make the plans, short term and long term plans, and then execute it. Okay, perfectly all right. Good answer. Yes. If he analyzes and prioritizes his work. That is also okay. But देखो, what is he going to analyze? If you say SWOT analysis, you have specified. Okay, क्या करना है? वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ तुम्हारे जो है उसको एनालिसिस करो और उसके हिसाब से तुम उसको प्रैक्टिस करो और उसको वीकनेसेस को ये फॉरगो करो तो तुम यू बिकम स्ट्रांग, इजंट इट? सो दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज, राइट? सो वन हैज़ टू एनालाइज करेक्टली कि भाई क्वेश्चन क्या पूछा और उसके अंदर कैच वर्ड्स क्या क्या है इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ दैट इज हिज कन्विक्शन. He says he feels strongly. He feels strongly on what? If I carry out my SWOT analysis and I curb my weaknesses, I become strong. Simple. Huh? Right. Next. no need to stand please because every time you stand get up there's lot of You can sit and talk. There is no problem. No hurry. He finds a person lying flat on the ground and many people have surrounded him. He would. So he would disperse the people and he would check his pulse and take him to the nearest hospital. Okay. Any other variation? First Yeah. of all, So he'll first of all clear the people, he'll open the first button of the shirt, then he'll just sprinkle the water and he'll gain the particular person back to consciousness. Any other view? it is said that he is lying on the road. He must be sleeping also. People are just seeing what is It could be wrong. drunk man also. It could be drunk man. Look, if the people are surrounding, firstly clear the crowd from there
lift him up from the road, bring him on the side, ठीक है, and give him first aid if is required. If he is drunk, put him behind the bars. Simple, right? चलो next. He is getting late in reaching a meeting. He would. Give a call to the colleague that he will be late and then try to reach as soon as possible. Yep, good. What else? Anybody else? Anybody think of any other option? So I'll check the Google map and connect to the fastest one and reach on time. Okay, fine. First and foremost thing is, what she says is more appropriate. You must inform them कि I am going to get late. ठीक है? अभी मैं यहाँ आ रहा था. Honestly, I got late. Honestly, and I got late because वो दुर्गा माता के सब जगह के ऊपर तो गाड़ी जा ही नहीं रहे थे आगे. I got stuck. I should have informed him immediately कि ऐसा ऐसा हुआ है. बट मैं उसमें लगा हुआ था कि भाई सर नीचे उतर के मैं खुद क्लियर करने में लगा था कि इसका ड्राइवर किधर गया है, गाड़ी बीच में गाड़ियाँ खड़ी करके रखी थी. फिर उनको ढूंढने में लग गया मैं, उसके अंदर निकालते मेरे को लेट हो गया. बट सिचुएशंस डू वारंट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई शुड हैव हैड द डिसेंसी टू इन्फॉर्म हिम, विच आई फेल्ड. ओके, आई फेल्ड इन दैट. इट्स परफेक्टली ऑल राइट, बट आई मस्ट एडमिट कि येस आई हैव डन दैट. तो आपको जैसे सिचुएशन आएगी तो व्हाट शी हैज़ वेरी राइटली सेड दैट यू मस्ट इन्फॉर्म देम फर्स्ट, so that the things, whatever that plan, the schedule is going to get upset as per that. Right, next. His leader has lost his way while taking his group for trekking. He would. His leader has lost his way while taking his group for trekking. He would. So he'll find the cardinal points by the position of the sun at the time and they rush to the direction. Okay, what else? Next. Take a pause, analyze the situation, look for cardinal directions and move towards it. Right. He'll cooperate with the leader. He'll see if he has really lost it and if he's looking for the shortest route. No, but you have been already told that he has lost. No. I'll cooperate with my leader. Still, Okay. he's probably trying to find the new Yeah. route. So first of all, we'll inform the leader that we are lost. Then with the help of the leader, we'll find the way to his destination. Right. क्यों भाई बाकी के सब लोग यार म्यूट लिसनर्स इज इट? ऐसे मत करो, कुछ आंसर दो. चलो लेट्स हैव वन मोर आंसर फ्रॉम देयर. ओके. So Sada gives a good answer. Sir, I will agree with Arush. नहीं agreed नहीं. नहीं, you have agreed better because she has spoken. Now you have to write on your own. That was the thing that they will. No, you say so, whatever that you can't say कि I agree because you do not know what he has written. If I say कि I entirely agree with the class, तो ऐसे नहीं होगा ना आंसर. You have to say. Right. Okay. Remember this thing. Yeah. So, he can burn one of the stick and then give signal to some people that we have lost and we are over here, so that they can come and find us. No. The question is, फिर से repeat करो देखो. His leader has lost his way. His ना. Okay. His leader has lost his way while taking his group for trekking. He would. अब लीडर ने लॉस कर दिया हो गया है, तो आप एज एन इंडिविजुअल क्या करोगे? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. व्हाट विल यू डू? सोचो हर एक बात को. ऐसा नहीं है कि एक्सटेम्पर बोल देना है हमने. Sir, go ahead. Yeah. Go ahead. Sir, I firstly informed him, the leader, that हाँ. we lost the direction. ओके. Sir, here we can consider two things now. One, that the leader already knows we are lost, or second, the leader doesn't know we are lost. And it's me who's telling him ki we are lost and we need to find a way. So what do we consider here? The first one or second one? Okay. Now the question is कि his leader has lost His leader has lost his way way. while taking his group for trekking. for trekking. कहाँ जा रहे? ट्रेकिंग का देखो. You people, how many of you have done trekking? Right. तो क्या करते हो ट्रेकिंग में? Let's go for that.
मैं तुम्हारे को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने यदि ये किया हुआ है तो दिस शुड स्ट्राइक योर माइंड इमीडिएटली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। जब ट्रैक के लिए जाते हो आप तो तुम्हारे को पूरा ट्रैक का रास्ता बताते हैं नहीं बताते हैं? बताते हैं। हाँ? यस सर। और ट्रैक का प्रोग्राम होता है यस सर। कि तुम जब जाओगे तो फलानी जगह के ऊपर इतने जाने के बाद तुम्हारे को 100 पॉइंट मिलेगा, वहाँ तुम्हारे को पानी मिलेगा या तुम्हारे को चाय दी जाएगी या तुम्हारे को लंच ब्रेक तुम्हारा वहाँ होगा, उसके बाद में तुमने इतने हाइट के ऊपर जाना है और ये प्रिकॉशंस तुमने लेनी है, और वहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में। तो ये अभी नाउ इफ़ द लीडर हैज़ लॉस्ट हिज ट्रैक, you should be able to tell the leader कि look we have to consult the map. You cannot say कि you are totally wrong, तुमने साला हमारे को बत्ती बंद कर दी तुमने, गधा है तुम, ऐसा नहीं है। ओके, सो यू हैव टू, बिकॉज यू आर अ टीम यस सर। and everybody knows, so you should immediately consult your friends and you should find out कि चलो अभी now we have lost our track, so we have to correct ourselves, so which is the latest point, और जो पिछले रास्ते के ऊपर छोड़ कर गया है तो can we fall back to that point and again realign ourselves and go? So you should advise him कि rather than wandering into the wrong things, जो positive point is where we definitely knew कि we are correct on that path, from there we should go and we should correct ourselves. तुम्हारे को ये तो कोई नहीं बोल रहा है ना कि तुम्हारा पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो रहा है और ये गड़बड़ हो रहा है, ये तो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन इज कि तुम्हारा जो ट्रैक है वो लीडर का ट्रैक गुम हो गया तो तुम क्या करोगे? सो व्हाट इज द बेस्ट मेथड? इफ यू हैव गॉट मैप्स, करेक्ट योरसेल्फ ऑन द मैप. इफ यू डोंट हैव मैप्स, go back to that point from where you had hit correctly and from there correct yourself and go. Okay? What if we don't know what position we are in? How will maps help with that? Then how did you come to know that you have gone wrong? So No. we have lost our path. So we don't how do you know that you have lost the path? We didn't reach the destination. बिकॉज तुम्हारे जो ट्रैक के डेस्टिनेशंस है, जो तुम्हारे को पहले पाथ बताया हुआ है, यू आर नॉट रीच टू दैट पॉइंट. और वो ट्रैकिंग के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, जनरली मैप रीडिंग वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं. लोन ट्री होगा या नाला जंक्शन होगा या एक स्मॉल माउंड होगा, ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं. बिकॉज दोज आर द ओनली पॉइंट्स विच आर, और सम विलेज. सपोजिंग इफ यू आर गोइंग ऑन दैट, देयर इज अ स्मॉल विलेज विच इज़ फॉलोइंग ऑन दैट रूट, वह तुम्हारे को मेंशन किया जाएगा, बट अदरवाइज नहीं होगा. तो जो तुम्हारे पॉइंट्स है जहाँ से तुम गए, when you went to a particular point and then you realize that you have gone wrong, so you after walking that particular specific distance and time, you are supposed to come to a particular point, reference point. You have not come to that reference point, that means you have lost. But the point which you have, where you were correct, you can go back from there and from there you can correct yourself and go. तुम्हारे को ये मैप क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि तुम्हारा सब टाइम लॉस हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, वो नहीं लग रहा. तुम क्या एडवाइस करोगे उसको? रादर देन गोइंग इन टू द वाइल्ड, इट इज़ बेटर दैट गो बैक टू द डिजायर्ड पॉइंट विच इज़ ऑफ अवेयर. हम सब अवेयर थे और वहाँ से अपने आप को करेक्ट करके जाओ. क्या प्रॉब्लम है ना? ओके, सो यू शुड बी एबल टू एनालाइज द थिंग्स सिचुएशन की बात. और sorry sir, that did not answer my question actually. I've asked कि उसमें लिखा है कि लीडर, तुम्हारा लीडर रास्ता भटक गया है तुम्हें लेकर, और मैंने कंसिडर किया कि लीडर को पता है कि हम रास्ता भटक गए हैं. कुछ लोगों ने कंसिडर किया यहाँ पे कि लीडर को पता ही नहीं है कि रास्ता भटक गए हैं, इसलिए कुछ लोग बोल रहे थे कि नो, पता ही नहीं. द क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर. द क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर. तुम उसका एनालिसिस कैसे करोगे उसके ऊपर डिपेंड है बेटा. अंडरस्टूड? यू शुड बी एबल टू एनालाइज इट करेक्टली. हिज लीडर हैज़ लॉस्ट हिज वे. लीडर डजंट नो. No. He knows. That's why he has lost. No. His leader has lost the way and he is अभी एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारे को क्या करना है. So you are now in the advisory capacity immediately. तो एडवाइस करो उसको, जो rather than beating around the bush, it is better to come back to the point from where you had lost. क्योंकि वो तो पॉइंट आपको मालूम है and you have already come to that place. वहाँ से अपने आप को करेक्ट करो. वो The simple answer is
I will advise the leader to fall back to the known reference point which we have just crossed, and from there correct ourselves and go again. ठीक है कि नहीं? Yes, yes. I think enough for today. It's already 8 p.m. sir. चलो, I think we should call it off. Yes, sir. Okay, fine. चलो, thank you. It was a pleasure interacting with you all, and I'm very sorry I got slightly late. It's all right.